Fark Parta mein hai. Today we have a very competent and a highly accomplished lady on our set. Her name is Dr. Sumaya Tariq. She is a medical professional. She is a police surgeon in Karachi and member of Special Committee Anti-Rape Act 221. Right? 2021, sorry. How are you? Welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much. You know, I've got a whole list of things that I can actually talk about, but I think हमारी audience को explain करने के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि she is an expert in basically handling sexual and gender-based violence, जिनको हम SGBV cases कहते हैं, और वो हमसे ख़ास आज rape and anti-rape legislation और इन चीज़ों के बारे में बात करेंगी. So, you know, thank you. It's going to be a very serious topic for first thing in the morning for sure, and we don't generally do this, but you know, ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, and we have to discuss these things. So you know, अभी हम लोग बात कर रहे थे before starting, आप कह रही थी कि पाकिस्तान का specific data नहीं है, but we have data for Karachi. Yeah. So how many rape cases do we get registered? For the entire city of Karachi, we would get around for the whole year. Maybe if I could divide it up, it will make a better impact. So every day we are getting 3 to 4 cases. Oh my God. Every day we are getting 3 to 4 cases which are getting registered. I'm just talking about the registered. The registered ones. आधे तो register भी नहीं होते होंगे. The ones who are not registered, the ones that simply do not get reported or aren't registered as medical legal cases, I don't know where they're going. So would you anticipate that there are a lot more than this? Around, we are missing out on approximately 8 cases for every 2 cases that are being registered. Oh. That is the, that's my rough assessment. Okay, great. And Dr. Sumaya, I wanted to ask you कि क्या पाकिस्तान की society या जिस तरह की हम situation में हैं, do you think it allows us to actually go and report rape very easily? हमारे societal pressures भी इस तरह के होते हैं कि काफ़ी families report नहीं करती rape. Before we come to the societal pressures, I would like you to give a trigger warning to anyone who's watching this program, especially the children. They should not be watching this. You want to give one? I can give one. Yeah, you can give it. Just a trigger warning. The children should not be watching this program. Okay. Guys, हम लोग आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है. अल्लाह ना करे, if you have been through a situation like this, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा या तो चैनल स्विच कर सकते हैं, या अगर आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो you don't have to watch this, right? It is an important topic, हमें ये डिस्कस करना है, and especially if there are any kids under 18 who are watching this, please, I trust you enough to tune out of this channel right now, ठीक है? And yes, let's begin now. Okay, so speaking of sexual violence को पहले तो एक बड़े तनाजुर में आप देखो, because हमें victim blaming की आदत होती है. सारी चीज़ जो है वो victim की गलती होती है. So उसकी वजह से society का इतना pressure होता है, especially girls who have never been married, young लड़कियाँ, even elderly खवातीन जिनके साथ ये हो जाए अगर, तो they would rather keep it to themselves than reporting it. Yes. Unless of course उनकी family उनको support कर रही हो. और फिर उसके आगे एक कॉन्वोल्यूटेड लंबा रास्ता है, उस रास्ते में भी बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं. सो बेसिकली बैरियर्स ज़्यादा हैं. ये जो एंटी रेप एक्ट था, ये इन्हीं बैरियर्स को जहन में रखते हुए बनाया गया था. हाउ टू मेक इट ईजियर फॉर समवन टू अप्रोच द हेल्थ सर्विसेज. So, Dr. Sumaya, I was working for a very big pharmaceutical company and a very multinational company, and उस ज़माने में जब डॉक्टर्स आते थे और वो जब ट्रेनिंग्स कर रहे होते थे, तो वो अक्सर हमें बताते थे when they were at Jinnah and a lot of these medical emergency places where a lot of families would come and not even report it. Yes. There would be cases like that. तो आप जिस तरह मुझे बोल रही हैं कि अगर 3 cases report होते हैं तो actually 8 हो रहे होते हैं जो नहीं होते, right? And in many cases अगर वो rape ना हो and sexual assault हो, so would that be count as the same category as rape? Okay, थोड़ा सा How do we differentiate? थोड़ा सा इसको ना broaden up. हमारा जो rape लॉज, एंटी रेप लॉज थे, उनका जो एवोल्यूशन हुआ, पहले हम कहते थे जी एक मर्द एक औरत को कर सकता है. उसके बाद थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, हम मैरिटल रेप की बात नहीं करते थे. वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मैरिटल रेप. हमने वो बात करनी शुरू करी. ये जो कल्मिनेशन आया हमारे पास, ये आया हमारे पास स्पेशली मोटरवे रेप इंसिडेंट के बाद. उससे पहले हमारे पास कसूर में ज़ैनब वाला वाक़या हुआ था, मुख्तारा माई वाला वाक़या हुआ था. सो वी वर, और फिर पड़ोसी मुल्क में निर्भया वाला वाक़या हुआ था. सो वी वर रेडी फॉर द समझे कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के लिए. एंड hats off to the government, hats off to all the wonderful ladies and the wonderful men who have worked on it. इसमें इतना बड़ा वास्ट कर दिया गया सेक्सुअल वायलेंस की डेफिनेशन को कि अब
एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ किसी किस्म की भी ऐसी ज्यादती करे जिसमें चाहे आपकी मर्जी शामिल ना हो, जिसमें इंसर्शन हो किसी किस्म का, चाहे वो बॉडी पार्ट से किया जाए, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट से किया जाए, स्पेशली 18 साल से छोटे बच्चों की बात भी की जाती है, सो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप. And in this situation, what kind of punishments are allotted? Like, I mean, if anything is done, तो हम लोग किस तरीके से इसकी जो what does the thing say, the document? डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि इसका अगर मैं एक आपको नटशेल में बोलूँ ना, तो एक स्लोगन जो बनता है वो डियर सर्वाइवर वी बिलीव यू. Of course. That's the first thing. अगर मैं इसको एंटी रेप एक्ट को एक स्लोगन दे दूँ सिर्फ और कुछ भी नहीं, तो ये मुझे ये लगता है कि इट्स डियर सर्वाइवर वी बिलीव यू, डियर विक्टिम जो डेड विक्टिम्स होते हैं वी आर देयर फॉर यू, ये विक्टिम्स के लिए. तो ये बेसिक है. अब ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच था. पुलिस अलग जगह बैठी थी, प्रोसिक्यूशन अलग जगह बैठा था, हमारी मेडिकल और मेडिको लीगल सर्विसेज अलग जगह बैठी थी. इनको एक जगह लेकर आना था. तो ये तीनों चीज़ों को एक जगह लाया गया. 1 2 ये किया गया कि इनका मल्टी सेक्टोरल अप्रोच बना दिया गया कि जहाँ से भी विक्टिम तो डेड की बात नहीं, मैं सर्वाइवर की बात करूँ, जहाँ से भी विक्टिम इस सिस्टम में, सर्वाइवर सेंटर में, इस सिस्टम में एंटर हो जाए, उसके लिए रास्ते बने हुए हों. लाइक मेडिसिन में मेरे थ्रू आ रहे हैं, तो मैं पुलिस को बुला सकूं, पुलिस के पास, तो पुलिस को पता हो कि मेरे पास लेकर. Because I remember Dr. Samaya back in the day, I'm sure a lot has changed, but पहले ये होता था कि you had to go report. And then only the doctor would touch you, right? And उस वक्त तक, that's lovely, because उस वक्त तक there's so much damage already caused to a woman's body. काफी cases में bleeding होती है, internal bleeding हो रही होती है, you know. Unfortunately, as much as I hate to know about this or follow this, I have, because I'm a woman end of the day. And I think ये चीज़ें बड़ी important. What age groups, unfortunately, do we look at? What situations are we looking at as well? कि ताकि कुछ लोगों को guidance भी हो. What areas should we be careful of as well? किस तरह की सिचुएशन? इस पे अब हमने डेटा कलेक्शन स्टार्ट किया है. I think that will be great. Because अभी I had the honor of piloting the project anti-rape crisis cell. पहला मेरे पास बना सिविल हॉस्पिटल कराची एंड पुलिस सर्जन ऑफिस में. हमने इसको अगस्त में लॉन्च किया. उसके बाद फिर हम जिना में बना चुके हैं, मुल्तान में बन चुका है, लाहौर में एक बन चुका है, इस्लामाबाद में 2 हो चुके हैं और एक पेशावर में हो चुका है. आई थिंक इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंशाल्लाह क्वेटा बलूचिस्तान में भी हो जाएगा. सो वी आर लुकिंग एट डेटा कलेक्शन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड वी होप टू हैव 1 in every district, crisis cell 1 in every district. बॉय केसेस कितने होते हैं, कितने केसेस किस कंट्रीज में, सिटीज में आपको ज़्यादा नजर आते हैं, एंड देन यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट इटसेल्फ. लेट्स बिगिन. ओके, सो बॉय रेप केसेस जो हैं वो रिपोर्ट कम होते हैं. Because somehow, जबकि आज I feel that it's important to save our boys first, and the younger they are, the greater risk they are at. To be honest. What age are we looking at? 4, 5, 6. 5, 6, yeah. 5, 6, yeah. Something like that. But having said that, when we are protecting our girls, it's important to protect our boys as well. We can't just let them run around loose anymore. It's not the same thing. It's not the same thing. And when we are talking about the structures underneath the Anti-Rape Act में multi-pronged strategy है. Multi-pronged strategy ये कहती है कि health facilities, including medico-legal, investigating facilities, that's the police and law enforcement, and prosecutorial services. So we bring them all together. We bring them all together. We make it easier for the survivor to approach them. We make it easier for the process to go through. और फिर इसके ऊपर हर जगह की लिमिट लगा दी गई है. Like मेरे पास क्राइसिस सेल है हॉस्पिटल में. पुलिस के पास SSOIUs हैं, Special Sex Offenders Investigating Unit. So that means कि we have specialized investigating officers who would most likely be a female, or if they are not female, they will have at least 1 female in that SSOIU unit. And obviously that makes a lot of difference. Yeah, that makes a tremendous amount of difference. A tremendous amount of difference. Even if they are not the principal investigating officer. But having a woman on the team definitely that makes a difference. तीसरा जो है वो specialized courts हैं. Specialized courts में prosecutors who are sensitized, who are gender sensitized, who know the nuances of such a case, and then the judges who are not only gender sensitized but also know the latest advancements in the law,
how it has changed, what has changed, बड़ी up to date होते हैं। अप टू डेट हो चुका है। अभी हम इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लाइक आई सेड, वी जस्ट हैव 2 here, 2 in Islamabad, 4, 5, 6, 7 in the entire country. But we are hoping that we will have such process, 1 in every district of Pakistan. Do you think it makes a Dr. Somaya, so this says basically, अभी जिस तरह हम कमर्शियल ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि एक टाइम था कि जब आप लॉन्च करते थे कंप्लेन तो कितने साल लग जाते थे, 7-7 साल लग जाते थे कि वो केस क्लोज हो। तो नाउ यू वर टेलिंग मी समथिंग रियली अमेजिंग कि 4 महीने की लिमिट लग गई है। 4 महीने में केस को ख़त्म करना है और ख़ास डिफरेंट कोर्ट्स बना दिए गए हैं कि ताकि वो केस डिले ना हो और नीचे ना जाता रहे, बट एक्चुअली डील किया जाए, व्हिच आई थिंक इज सच अ बिग इंप्रूवमेंट कि इन्हीं 2 चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। डू यू थिंक फ़र्क पड़ा है? ओके, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ आपको। एंटी रेप क्राइसिस सेल का मॉडल जिस चीज़ पे बनाया गया वो हमने पायलट किया था कराची में एट जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर विद द असिस्टेंस ऑफ UNFPA एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट, JPMC का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेरा अपना डिपार्टमेंट, हम इन्वॉल्व थे। सो हमने इसको वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर का नाम दिया था। अच्छा, वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर पे हमने काम ये किया था कि ये तीनों चीज़ों को हम एक साथ लाए थे। प्रोसिक्यूशन भी हमारे साथ है, हम इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ भी हैं और साथ में मेडिकल एंड मेडिको लीगल सर्विसेज भी, इंक्लूडिंग साइको सोशल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमने साथ में की। सो 2020 दिसंबर में दिसंबर 2020 की बात करूं, कन्विक्शन रेट इन सेक्सुअल वायलेंस केसेस जो था 2 से 4%। अच्छा, जब हमने 2023 में ख़त्म किया तो उस वक्त हमारा जो कन्विक्शन रेट था कराची का वो था 15%, 15%। सो आप सोचो, और कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वाज 40% कन्विक्शन रेट। सो द सिस्टम that is at the back of the anti-rape crisis cell and the multi-pronged strategy was already tested at JPMC. So जब JPMC में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, कन्विक्शन रेट से ही हम मेजर करते हैं अपनी सक्सेसेस। और मोस्टली केसेस अगर आप देखें तो कराची में इस तरह के केसेस जिना या सिविल इसी तरह के जगहों जिना में, सिविल में और अब्बासी में जा रहे हैं। मेरे पास तीनों सेंटर्स हैं। तीनों सेंटर्स आते हैं। एंड यू नो, अल्लाह माफ करे, आई हैड टू गो टू जिना a lot because of my previous job as well, and I would always see these emergency cases coming in and as well, and it was alarming the amount of, you know, people who would actually come. And my only concern always used to be कि यार इन लोगों को बाद में वो psychological care मिल रही है, बाहर के मुल्कों में तो बाकायदा थेरेपी दी जाती है, फैमिलीज को भी दी जाती है और जो विक्टिम होता है उसको भी दी जाती है। हमने रेफरल पाथवेज में ये मैंडेटरी कर दिया है दैट ऑल सच विक्टिम्स, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड करूं तो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स भी, सर्वाइवर्स भी, उनके लिए भी मैंडेटरी किया है कि हम उनको रेफर करेंगे टू द डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, या अगर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं तो वो। इसके साथ साथ क्या किया कि सेंसिटाइजेशन स्टार्ट करी गायनी वालों की, पीड्स वालों की, सर्जरी वालों की, जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो डर जाते हैं कि यार ये मेडिको लीगल केस है, ओ हम नहीं देख रहे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम दैट दे कैन कॉल अस एट एनी टाइम। वो हमारा रेफरल पाथवे में आ गए हैं। सो आई एम कम्युनिकेटिंग विद ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, वी आर सिटिंग डाउन विद pediatric consultants, we are sitting down with gynae consultants, we are talking to casualty staff, we are talking to the orthopedics people, जो लोग इनको देखते हैं। फिर एक और रेफरल पाथवे जो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कर दिया सर्वाइवर्स के लिए, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का, HIV, AIDS, हेपेटाइटिस B and C के लिए, ताकि पहले ही हम उस चीज़ को कर्टेल कर सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। डॉक्टर समैया, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंटली पुट फॉरवर्ड। मैं आपसे इन द एंड एक ज़रूर चीज़ पूछना चाहूँगी, इफ़ यू कैन लुक एट द ऑडियंस स्पेसिफिकली एंड टेल देम दैट अल्लाह ना करे कभी इस तरह की कोई चीज़ हो, हाउ कैन दे रिपोर्ट इट डायरेक्टली? ओके, पहले डर ये होता था कि जी पुलिस के पास जाना है, ऐसा नहीं है। अब आप अपने करीब तरीन मेडिको लीगल सेक्शन में जा सकते हैं। अगर आपके करीब तरीन एंटी रेप क्राइसिस सेल नहीं है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। करीब तरीन मेडिको लीगल क्लिनिक में जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में जाके भी रिपोर्ट कर सकते हैं, जो मेडिको लीगल को भी इन्वॉल्व कर लेगा और साथ ही साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो इसेंशली जब तक बाकी जगहों पे नहीं बन जाते क्राइसिस सेल्स, प्रोटोकॉल्स यही रहेंगे, मैंडेट यही रहेगा। Amazing. Thank you so much, Dr. Sumaya. I think that is a very, very valid information. और आपने बड़े clarity से explain किया है. Guys, I think things have really changed a lot. I would like to thank you for being here.
फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड यू नो आई होप ऑडियंस में जो भी देख रहे हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज़ एक्चुअली बिन डन। पहले ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती थी, अब ये चीज़ें नॉट ओनली रिपोर्ट हो रही हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं जिस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है। प्लीज़ कीप योर किड्स सेफ, योर बॉयज़ just as safe as your girls and raise these boys well as well। बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के ऊपर काम करते रहें। ये भी हमारी सोसाइटी का एक शैडो साइड है अनफॉर्चुनेटली, और हमें उससे भी डील करना है।